ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਤ ਭਗਤੀ, ਤਤਵ ਗਿਆਨ, ਕਰੁਣਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਆਦਿ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂਨਿਟ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਉਜੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਫਤ ਭੰਡਾਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਈਏ। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। नमस्कार दर्शकों, भक्ति ये एक ऐसा सफर है जो दिल और आत्मा को सुकून देने वाला होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम भक्ति करते करते भी सुख का अनुभव नहीं कर पाते।
तब मन में सवाल उठता है, क्या वाकई भगवान का अस्तित्व है या नास्तिक लोग ही सही हैं? क्या ये सभी धार्मिक गुरुओं की बातें मात्र पाखंड हैं? लेकिन आत्मा का स्वभाव है कि वह उस परमात्मा के बिना नहीं रह सकती। उसमें परमात्मा को पाने की एक तड़प होती है। यही वजह है कि लोग कई रास्तों पर भटकते रहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर भटकते रहते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि उन्हें शांति मिलेगी। जैसे श्वेता जी, जो छत्तीसगढ़ के बालोद से हैं। उन्होंने हर संभव प्रयास किया, साईं बाबा की पूजा, शनि देव के मंदिर में दर्शन और यहाँ तक कि नवरात्रों का व्रत भी रखा। फिर भी उनका जीवन कठिनाइयों से घिरा रहा। उनके पति शराब पीते थे और शादी के 3 साल बाद भी उनके घर में कोई संतान नहीं थी। फिर एक दिन श्वेता जी के पति को संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य मिले। उन्होंने उन्हें जीने की राह और ज्ञान गंगा पुस्तकें दी। उनके पति ने सत्संग सुना और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान शास्त्रों से मिलाया। प्रमाणित ज्ञान देखकर उनके परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की ठानी। आज श्वेता जी के पति ने शराब छोड़ दी और जो संतान न होने की निराशा थी, वह निराशा आशा में बदलकर अब एक छोटी सी नन्ही परी के रूप में उनके पास है। आज इनका परिवार पूरी तरह से स्वस्थ है और परमात्मा की भक्ति में लगा हुआ है। सोचने का विषय यह है कि ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में? उनके अनुयायियों को चमत्कारिक लाभ क्यों मिलते हैं? दरअसल संत रामपाल जी महाराज हमें पूर्ण परमात्मा की भक्ति से जोड़ते हैं। वह ज्ञान जो सदियों से छिपा हुआ था, वह आज संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा है। आइए अब सुनते हैं श्वेता जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? श्वेता दासी। श्वेता जी, आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम खेरथाडी, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। श्वेता जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? फरवरी माह सन 17 में लिए हम लोग। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, बहुत भक्ति करती थी। मैं नवरात्रि में देवी दुर्गा का व्रत करती थी, शनिवार को शनिदेव का व्रत करती थी और गुरुवार को मतलब साईं बाबा का व्रत रखती थी। और जो हमारे हिंदू धर्म में जो प्रचलित सभी धर्म में है, देवी देवता की भक्ति करना, उपवास रखना, पूजा करना, मंदिर जाना, ये सब पूजा मैं करती थी। अब मैंने ना सन 2008-9 में आसाराम बापू से मैं नाम दीक्षा ली थी। मेरे पापा उस मार्ग में जुड़े थे तो बोले कि यहाँ भक्ति करना है, मानव जीवन का जो मूल उद्देश्य है भक्ति करना, और ये सब देवी देवताओं की जो भक्ति करते हैं, उसी कारण हम लोग सन आसाराम बापू से हम लोग नाम दीक्षा लिए थे। मेरे मम्मी पापा बाकी परिवार में सब लिए थे। जैसा कि आपने बताया कि आप हिंदू धर्म में चलने वाली सभी भक्ति साधनाएं करते थे, फिर आपने आसाराम बापू को अपना गुरु बनाया, लेकिन फिर क्या कारण बना कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी को भी अपना गुरु बनाया? सर, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था कि मेरे पति बहुत नशा करते थे। तो उस टाइम ना मेरे गांव में एक भगत जी हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लिए थे। तो उन्होंने मेरे पति को बताते थे कि भाई आप ये ज्ञान समझो, जीने की राह है, ज्ञान गंगा पुस्तक है, आप पढ़ो, ये बहुत भक्ति मार्ग है। आपके इस मार्ग में आने से आपका नशा छूट जाएगा और आपकी जो बेटी बहुत दिन से बीमार है वो भी ठीक हो जाएगी। तो मेरे पति ना संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनते थे, शाम को जो साधना चैनल पे आता है, और उसी टाइम ना ज्ञान गंगा बुक भी पढ़ते थे और गीता में एक एक अध्याय एक एक श्लोक मिलाते थे कि ये भक्ति जो है वो तो सही हमारे धर्म जो ग्रंथ है उसमें प्रमाणित है। तो सर यही कारण था कि हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी से बंदी छोड़ से हम लोग फरवरी 2017 में जाके नाम दीक्षा लिए। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थीं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको लाभ मिले? हाँ जी, बंदी छोड़ सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें बहुत सारे लाभ मिले सर। पहला लाभ तो ये है कि मेरे को शादी को हुए 3 साल हो गए थे, मेरे कोई बच्चा नहीं था। तो भगत जी लोग बताते थे कि इस मतलब भक्ति मार्ग नाम दीक्षा ले लो तो आपको बहुत सारे लाभ हो जाएंगे। तो मैं सोची कि चलो हाँ करके, तो उसी टाइम मेरे को ना भगत जी, मेरी बेटी हुई है, आज वो पूरा 9 साल की है भगत जी। संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को संतान रूप में एक बेटी भी दी है परमात्मा ने। मेरी बच्ची जो कुछ भी खाती पीती नहीं थी, वो जैसे ही हम लोग आश्रम में गए नाम दीक्षा लिए, वहाँ भगत जी लोग चाय
चाय पी लो, बिस्किट खा लो, मतलब मेरी बच्ची को देख के बोलते थे कि खा लो बेटा। वो भक्ति कर मतलब खाई, वहाँ भंडारा भी करके आई। और उस दिन से लेके आज तक भगत जी मेरी बेटी को आज कोई बीमारी नहीं है, हम लोग सब लोग ठीक हैं। मेरी बच्ची भी ठीक है और मेरे पति का भी जो नशा था वो भी छूट गया है। और आज हम लोग संत रामपाल जी महाराज की वजह से घर में हमारे सब सुख शांति है। तो फिर मेरे को विश्वास हुआ, मेरे पति को भी विश्वास हुआ, और तब से लेके आज तक सर हम लोग इस पर भक्ति मार्ग में जुड़े हैं और संत रामपाल जी महाराज की शरण में लगे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? मैं अपने जगत के भाई बहनों से यही प्रार्थना करती हूँ कि आज मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद जो सारे सुख हुए, मेरे को संतान का सुख प्राप्त हुआ, मेरे पति नशा छोड़ दिए, और संसार में मेरे जैसे कई महिलाएं हैं जो बहुत दुखी हैं। उनको लगता है कि हाँ डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, किसी झाड़ फूक वाले के पास जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। ये उनकी गलत धारणा है, क्योंकि हमारे आज जो हिंदू धर्म में प्रचलित बहुत सारे साधु संत हैं जो अपने अपने दुकान खोल के बैठे हैं कि आओ हमारे पास ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं मिलता है। आज धरती पे संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के रूप में आए हुए हैं, और वो ऐसा नहीं है कि कोई कह दिया और हम चले गए। वो एक एक अध्याय, एक एक मतलब जो धर्म ग्रंथ है देवी मतलब हमारे हिंदू धर्म में कि है, गीता है और कुरान है, बाइबिल है, इन सभी में प्रमाण देते हैं और उंगली रख रख कर बताते हैं कि बेटा ये हमारे ही ग्रंथों में ये सब ज्ञान छुपा है, आप सत्संग सुनो, ज्ञान गंगा बुक है, जीने की राह बुक है, इन सबको पढ़ो। और इसी के कारण आप संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है उसको आप समझकर इस भक्ति मार्ग में आ सकते हैं और अपना मानव जीवन का कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। परमेश्वर शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में जय भाग्य में सूली होवा काटे में टल जा। यदि आपके भाग्य में कहीं मृत्यु दंड लिखा हो, कहते कांटा लाग के, मनमाने ठोकर लाग के, अंगूठा फूट के जीवन बच जा, इतना हल्का करके परमात्मा वो कबीर परमेश्वर आपके प्रारब्ध में लिखे हुए पाप कर्म का विनाश कर देते हैं, और संचित जो कर्म आपके वहाँ रखे हैं डिपॉजिट, उसका भी नाश कर देते हैं। क्या बताते हैं परमेश्वर अपनी महिमा, आप ही बतावें आकर के। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। हमारे संचित कर्मों का ढेर लगा पड़ा है। हम आप जी को अब मिली है सत साधना, जो सच्ची साधना करनी चाहिए थी। इस सत साधना को ना करके हम जितने भी क्रियाएं करते थे वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण था, वो भगवान के विधान के विपरीत था। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात मनमानी पूजाएं करते हैं, शास्त्र जो शास्त्र अनुकूल नहीं है, तो उनकी न तो गति होती है और न ही उनको कोई सुख होता है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। और इन 3 कामों के लिए ही हम भगवान की भक्ति करते हैं, और वही उन साधनाओं से कोई लाभ नहीं होता जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं। तो उन क्रियाओं से हमें पुण्य बना नहीं, भक्ति धन जुड़ा नहीं, और जो साधना हम करते थे शास्त्र विधि को त्याग कर, उससे पुण्य के स्थान पर पाप बनते रहे। हम जिस लोक में रह रहे हैं ये काल का लोक है, यहाँ सुख नहीं,
या तो सारा निर्दयी कार्य है इस भगवान का, क्योंकि जिसका नाम काल है, जो है ही कसाई, तो वहां सुख कैसे हो सकता प्राणी को। अब इसने ये खुद कहता गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में श्रीमद् भगवत गीता में कि अर्जुन मैं काल हूं और सबको नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। अर्जुन 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में कह रहा है कि हे भगवान, आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, आप तो ऋषियों के भी खा रहे हो, और इस ऋषियों का समुदाय आपके आगे हाथ जोड़ रहा है, मंगल हो, बख्श दो। आप तो इनको भी खा रहे हो। ये कहता मैं तो काल हूं भाई, मैं ना छोड़ दूं किसी ने, और तू ना युद्ध करेगा तो भी मारूंगा इनको, ये तो मार रखे मैंने। तो पुण्यात्मा जो खुद न्यों कह मैं काल हूं और उसको हम भगवान मान रहे, हम तो सांप पूज रहे थे, सर्प। अब श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने इस गीता के ज्ञान से पहले अपने आप को कभी काल नहीं कहा और उसके बाद कभी अपने आप को काल नहीं कहा। ये तो काल जो है ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और ब्रह्मा विष्णु महेश का ये पिता है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की दुर्गा माता है और ये इसको श्राप लगा हुआ ब्रह्म को, इस काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, ये काल रूपी ब्रह्म भी कहलाता है। तो उस श्रापवश इसने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित आहार करना पड़ता है और उसके लिए हमें यहां रोक रखा है इसने। अब जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों को सुविधाएं तो देता है वो, जैसे एक चारों तरफ से उनको बाड़ बना दी, कोई हिंसक पक्षी पशु और ना खा जाए उनको, और चरागाह बनवा दिया उनके लिए, घास फूस बोझड़े झाड़ उड़ खूब उत्पन्न हो गए। एक तालाब बनवा दिया, एक शेड डलवा दिया घास फूस का, यानी झोंपड़ी। सर्दी लगे तो उसमें आ जाएं, वर्षा आवे तो उसके नीचे खड़े हो जाएं, और चारा खूब बढ़िया उनके लिए उपस्थित होता है। अब वो बकरे ये सोचते हैं कि हमारा जो मालिक है कितना अच्छा है, कैसी सुविधाएं हमें दे रखी हैं, घास दे रखा है खाने को, चरागाह दे रखे हैं और तालाब बनवा रखा है। अब उन बकरों की इतनी ही बुद्धि काम करती है, लेकिन वो उस समय को भूल जाते हैं जब आता है कहीं से उसको ऑर्डर 20 बकरों का, 10 बकरों का, बकरियों का, तो वो क्या करता है, जाकर के उनसे लेकर डंडा और छांट लेता मोटे मोटे। अब उसमें किसी का बेटा मरो, चाहे किसी की बेटी कटो, चाहे माँ कटो, चाहे बाप मरो, वो ना देखता है किसका बेटा किसकी माँ है, इसकी माँ का क्या हाल होगा, रोएगी, इसका बच्चे रोएंगे, तो वो तो उनको निकाल लाता है। वह नहीं सोचता, उसके मन में भी ना आती है बातें, उसने तो छांटने मोटे मोटे और जाके कड़च करवा देता, कटवा देता है। तो यही हालत आप जी की हमारी यहां पर हो रही है। आप देखते हो दुर्घटना में परिवार नाश हो जाता है। वैसे किसी आपदा में जैसे भूकंप आ गया, वहां पर अक्षेत्र नष्ट हो जाता है। किसी परिवार के 4 मर गए, 5 मत, किसी के 6 मत, 3 मर गए, कुछ बालक बचे, किसी का बाप बच गया। तो ये स्थिति हमारी यहाँ पर है जैसे कसाई के बकरों की होती है। और हम ये सोचते हैं देखो कितना अच्छा भगवान है, कितनी अच्छी पृथ्वी दे रखी है, इस पर भिन्न भिन्न प्रकार के फल फ्रूट हैं, काजू किस्म, सेब संतरे, कभी झरने बह रहे हैं, बढ़िया दरिया बह रही हैं, नीचे जल है, बहुत अच्छा वातावरण है, और हम संतान उत्पत्ति करते हैं और खाता वो है। लेकिन हम सोच नहीं पाए कि ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा हमारे साथ, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी कमजोर बना दी इसने और ऐसा शरीर में हमें फिट कर दिया कि हम ज्यादा सोच नहीं सकते,
इसमें कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई बीमारी या टेंशन, 100 प्रकार की समस्या इसके अंदर। तो ये ज्ञान भगवान ने आके बताया कि तुम यहां इस काल के लोक में रह रहे हो और यहां तुम सुख खोज रहे हो। तो जो प्रसंग चल रहा है कि ये पाप कर्म का नाश नहीं कर सकते और ये खुद भी दंड भोगते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता हैं ये काल भगवान, और जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, तो हम ऐसे लोक में रह रहे हैं कि वो साधना करेंगे तो कुछ पुण्य तो हो जाएंगे, लेकिन पाप भी पैरेलल होंगे तो वो अलग से लिखे जाते हैं। जब तक हम परम पूज्य कबीर देव परमेश्वर की शरण में नहीं आते, और वो भी परम संत के माध्यम से, नकली संतों से भी परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो सकोगे, चाहे वो कबीर पंथी भी कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास वो मंत्र नहीं है जिससे परमात्मा हमें लाभ दे सकता है। अब जैसे कोई गणते जांडी काटे तो कोई प्रॉपर वे थोड़ा ही है, वो तो बकवाद है। जांडी काटनी है तो तिखा कुआड़ा चाहिए, कट्टा कट कर दे 1 घंटे में साफ, और उस गणका लगा रहो चाहे 10 दिन तक कंडे मोर हो ले। तो साधन ठीक हो परमात्मा के पाने का, परमात्मा मिलेंगे। तो प्रसंग चल रहा है कि जिस लोक में हम रह रहे हैं ये ऐसे निर्दयी का लोक है। आप यहाँ अपने पेट के लिए जा रहे हो, जाना पड़ता है, रास्ते में कीड़ी मकोड़ी ना जाने कितने जीव जंतु आपके पैरों के नीचे कुचले जाते हैं, और ये पता भी होता है और फिर भी नहीं बचा जा सकता हमसे। परमात्मा कहते हैं पृथ्वी ऊपर पग जो धारे और करोड़ जीव एक दिन में मारे। अब कहने का भाव ये है कि जो हम साधना करते थे शास्त्र विधि को त्याग के, उनसे पुण्य तो कोई बना नहीं था, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध होगी, और पाप अपने आप बने थे। जैसे 1 एकड़ जमीन है, यानी कोई 2-4 एकड़ जमीन है, यदि उस जमीन से हम कुछ लाभ लेना चाहते हैं, जैसे कणक उगाना चाहते हैं, गेहूं चना बाजरा ज्वार कोई भी फसल हम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने एक विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा। वो घास पहले वाला काटना पड़ेगा, उसमें कोई झाड़ बोझड़े उग गए हैं वो काट काट के बाहर करने पड़ेंगे, और फिर हल से ट्रैक्टर से यानी परिश्रम करना पड़ेगा और पैसे लगाने पड़ेंगे। अपनी मेहनत से, मजदूरी से या पैसे से उसकी गुडाई करनी पड़ेगी। फिर बीज डालना, वो भी पैसा, यानी बीज जो डालेंगे चाहे मोल ला कर डालेंगे या अपने घर से डालेंगे तो वो भी पैसा ही लग रहा है। फिर सिंचाई का, उसके ऊपर फिर अपनी पर्सनल मेहनत, ये सब इतना व्यय करके और समय भी सारा दिन उसी के चक्कर में लगे रहना, तब जा करके कहीं फसल बनती है, गेहूं प्राप्त होते हैं। और उसी जमीन उसी पृथ्वी को आप बिल्कुल ना छेड़ो, कुछ ना करो, उसमें भी फिर भी अपने आप अड़ंगा उग गया होगा, अपने आप इतना कुबाड़ो उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा, वो दिखे भी नहीं पृथ्वी है यहाँ पर, तो वो यूजलेस है। तो पुण्यात्मा वो घास तो आप पे बन गया, वो अड़ंगा कुबाड़ तो आप पे उग गया, और फसल बनाने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ा, और वह भी फसल हुआ तो वरना भी हुआ। यहाँ के जो साधनाएं थी वो ऐसे टाइप की थी जैसे कोई इंद्र की गद्दी प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग का राजा बनने के लिए तप या यज्ञ करते हैं, तो उनकी यज्ञ या तपों को खंड करवा दिया करता था वर्तमान राजा इंद्र। क्योंकि यहाँ राजनीति चलती है, धर्म नीति नहीं चल सकती। धर्म नीति तो परमात्मा के चरणों में आने के बाद हम राज्य की इच्छा त्याग कर ही धर्म नीति को पर चल सकते हैं, उसको सफल कर सकते हैं। तो इंद्र अपनी राजनीति के आधार से कि कहीं कोई तेरी गद्दी प्राप्त करने के योग्य कोई ऐसा धार्मिक अनुष्ठान ना कर ले, तो उनको खत्म करवा देता था, किसी ना किसी कारण से खंड करवा देता।
तो वो समझ ले जैसे किसान यहाँ पर खेती तैयार करता है, ओले आगे या वर्षा फ्लड आ गई, हो गया नाश बने बनाए का, या आग लग जाए बनी बनाई फसल गेहूं का। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि इतनी मेहनत के बाद भी आशा नहीं कि घर आ जाएगी, और घर आती है तो कितना प्रयत्न, और वैसे उसमें अड़ंगा वैसे उग गया उस जमीन में। तो ये हम जिस लोक में रह रहे हैं ये ऐसा स्थान है कि हमने अगर पुण्य करने पड़ेंगे इस शरीर से तो मेहनत करनी पड़ेगी, काम भी छोड़ना पड़ेगा, 10 रुपये भी लगाने पड़ेंगे, तब हम पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और साधना हमारी शास्त्र अनुकूल हो, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण ना हो, तो तब हमें पुण्य मिलेंगे। और पाप बराबर में लिखे जाएंगे, पाप अलग लिखे जाते हैं, पुण्य अलग लिखे जाते हैं। जब तक हम कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आते हैं परम संत के माध्यम से, तब तक हम जो साधना करते हैं चाहे वो शास्त्र अनुकूल भी क्यों ना हो, तो भी हमारी दोनों लिखे जाएंगे, पुण्य न्यारे पाप अलग, और दोनों ही हमें प्राप्त होंगे। उन भक्ति वाली साधनाओं का तो स्वर्ग महास्वर्ग में जिस झूठे सुख को सुख मानते हैं वहां मिलेंगे, और जो पाप अलग लिखे हुए हैं वो मिलेंगे हमने नरक में, या फिर 84 लाख योनियों में, या फिर मनुष्य जीवन प्राप्त होगा, उसमें भी कुछ मिश्रण किया जाता है पाप और पुण्यों का। तो कहने का भाव ये है कि जहां हम रह रहे हैं वो, और जिन भगवानों को हम पूज रहे हैं उनकी पूजाओं से हमारे संचित कर्म नहीं कट सकते। प्रारब्ध का जो कर्म, प्रारब्ध का कर्म वो होता है जो हमारे जीवन में लिख दिया जाता है, जिसको हम भाग्य बोलते हैं, किस्मत, वो दोनों भोगने पड़ेंगे। और कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद ये परमात्मा कहते हैं, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में कहा है कि उसी कसी कबीर अंगारी असी बम्भारी असी। अग अंगारी माने अग माने पाप, अरि माने शत्रु, पापों का नाशक, वो कबीर है, कबीर देव का, हम उसको कबीर साहब बोलते हैं। बम्भारी माने हमारे कर्मों के बंधन को काटने वाला, बम्बर माने बंधन, और अरि माने शत्रु, बम्भारी। तो बम्भारी जो बंधनों का शत्रु है वो कबीर देव है, कबीर साहब है। और वो रित धामा सवर ज्योति रित धामासी, वो स्वयं प्रकाशित है उसका शरीर परमात्मा का, जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित है ऐसे ही परमेश्वर का शरीर स्वयं प्रकाशित है, साकार है, मनुष्य सदृश है, नर आकार है, मनुष्य तुल्य है वो, और वो सतलोक में रहता है। अपनात्मा परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी अमृत वाणी में बोला था, कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में 600 वर्ष पहले कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन में नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। वेद मेरा भेद है, मेरी ही जानकारी, मेरी महिमा का गुणगान वेद कर रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इन चारों वेदों में ब्रह्म तक की साधना का उल्लेख लिखा है। और 5वां जो वेद था सूक्ष्म वेद, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी यानी 5वां वेद था, उसको नाश कर दिया इस काल भगवान ने कि कहीं इन मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं इनको भगवान का पता ना लग जाए और इस साधना को करके ये मेरे जाल से निकल ना जाए। इस दृष्टिकोण से इस काल भगवान ने वो 5वां वेद नाश कर दिया। उस 5वें वेद के नाश की पूर्ति करने के लिए परमेश्वर स्वयं चल कर आते हैं सतलोक से, और फिर वो जानकारी देते हैं खुद आकर के। वो कहलाती है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो 25 से लेकर और 31 तक जिन मंत्रों के श्लोकों में जो व्याख्या है, कोई तो योगासन करता है,
कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी बनकर मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमता है, कोई जीव इंसान हो जावे ये ऐसी साधनाएं करते हैं, कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई केवल अपने श्वास उश्वास पर ध्यान देता है कि श्वास बाहर जाता है वो श्वास अंदर आ जाता है, इस पर देखते रहो, बस यही क्रियाएं हैं, यही साधना है। ना देखोगे तो भी श्वास तो आवे जावेगा, ना तुम्हारे देखने तक के कला टूट गया उसमें। तो बिना ज्ञान के ये धक्के दे रखे थे, डरे डुआ रखे थे अपने से, ये साधनाएं ठीक नहीं थी। शास्त्र विधि को त्याग का मनमान्य आचरण था। तो कहता है इन 25 से लेकर 30 तक जो ये श्लोकों में चौथे अध्याय के गीता जी में साधना या साधक अपनी साधना को पापनाशक जानते हैं और इसलिए वो कर रहे हैं। एक दिन उनको ये पता लग जाए गलत है, तुरंत छोड़ देंगे वो। तो फिर कहा गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कि वो यथार्थ ज्ञान इन यज्ञों का जो यज्ञ कर रहे हैं ना, परमात्मा पाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, इन धार्मिक यज्ञों की अनुष्ठानों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ लिखी है सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी में। ब्रह्मणे मुखे यानी उस परमात्मा ने अपने मुख से आकर बोली है उस वाणी में, वो यथार्थ ज्ञान लिखा हुआ है। अपनात्मा वो है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी। और परमात्मा कहते हैं ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन मैं इन वेदों में वर्णित विधि से प्राप्त नहीं हो सकता। आपको दिखाते हैं यजुर्वेद, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का मंत्र नंबर 32 में कबीर अंगारी असी बम्भारी असी, ये देखिएगा, ये है यजुर्वेद और महर्षि दानंद द्वारा इसका अनुवाद है। इसके प्रकाशक कौन है? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय, महर्षि दानंद सरस्वती कृत। इस दानंद जी ने इसका अनुवाद किया है। ये लेखक नहीं है वेदों का, केवल अनुवाद करता है, जैसे गीता जी के गढ़े अनुवाद करता है। और मुद्रक ये हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इसके 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में दिखाते हैं आपको। ये 5वां अध्याय और ये है नीचे 32वां मंत्र 32। यहां देखिएगा, उसी गसी, ये देखो, कबीर अंगारी असी, हम इसको कबीर बोल देते हैं, बै अपने लैंग्वेज में हम बै बोलते हैं। कबीर अंगारी असी बम्भारी अविसुर असी। अच्छा, इसका इन्होंने अनुवाद किया है, ये देखेंगे। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप, उसी के माने कांतिमान, असी माने हैं, और अंगारी माने खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु। ये लिखना था, आप पाप के शत्रु हैं, पाप नाशक हैं। अब ये अनुवाद करता महर्षि दानंद का अपना ज्ञान सिद्धांत था कि भगवान पाप नाश नहीं करता, इसलिए इसने यहाँ बात उलझा दी। और फिर 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में 6 बार लिख रखा भगवान पाप नाश कर देता है, वहां इसकी बसाई नहीं था। ये लिखना था वो अंग माने पाप, अरि माने शत्रु, वो पापों का शत्रु कौन है? कबीर। अब इन्होंने इसको, ये कबीर है, कबीर, हम इसको कबीर बोलने लगे और इसने ये कर दिया इसका कवि और अर्थ कर दिया कांत प्रजय है। अब पहले हम इस, और फिर बम्बारी, ये देखो, बम्बारी, बम्ब आरी माने, बम्ब माने बंधन, अरि माने शत्रु, बंधनों के शत्रु, यानी हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं, जो बंधन काट दे, बंधन तो छुड़वा दे। हम कबीर जी को, कबीर परमेश्वर को हम बम्भारी यानी हम बंदी छोड़ कहते हैं। और इसको लिखने का फर्क है, या बंदी छोड़ लिख दे, बंधनों का शत्रु लिख दे, एक ही बात है। अब जैसे इन्होंने यहाँ जो गलती की है ना, यह गलत कर दिया। ये अगर या तो फिर कवि ये लिख देते, यहाँ पर वो कवि हैं बस, फिर भी हम मान जाते, न कुछ ठीक करने की चेष्टा की।
कबीर का अर्थ कांत पर जे लिख दिया, है कोई बात हुई। अब जैसे ये यजुर्वेद है जिसको हम पढ़ रहे हैं और इसका कहीं पर व्याख्या हो, अब दिखाते हैं आपको। अब जैसे ये इसी यजुर्वेद का अब 36वां अध्याय है, ये देखो, ये 37 अध्याय यानी 36, और इसका ये प्रथम मंत्र है, ये रहा। इसमें ये लिखा है रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, ये यजु शब्द लिखा है। अब ये है यजुर्वेद के विषय में, और इसका कोई अर्थ कर दे वो गलत करेगा, इसका यजुर्वेद ही लिखना पड़ेगा यो, जैसा कि इस महर्षि ने ये ठीक किया। यहाँ पर ये है यजु, इसका यहाँ अनुवाद किया है, वहां मूल पाठ था। ये देखो, ये यजु शब्द है और इसका यजुर्वेद लिखना पड़ा, ये सही अर्थ बना। यहाँ पर यदि इस यजु का अर्थ कर देते यज्ञ स्तुतियों का संग्रह, तो के बेराव का के है संग्रह, यज्ञ स्तुतियां लिख दे इसकी, यज्ञ स्तुति, तो यजु का अर्थ यहां लिखना पड़ेगा कि वह है यजुर्वेद के बारे में कहा जा रहा है। तो ठीक जहां इन्होंने कवि कर दिया उसको हमने कबीर देव कर पढ़ना पड़ेगा, कबीर देव लिखना था। देखो हम फिर आते हैं वही 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में, ये 32वां श्लोक यजुर्वेद का। अब यहां इसने जो कवि कर दिया, यहां लिखना था वो कबीर देव है, बस वो कबीर देव लिख देते, हम कबीर देव कहने लगे। देव को परमेश्वर, देव का अर्थ परमेश्वर होता है, तो यहां लिखना था वो कबीर देव हैं। और देखो यहां लिखा है ऋतधामासी सवर ज्योति, ऋतधामा इन्होंने खुद लिखा है। ऋतधामा माने सतधाम युक्त, हम सतधाम कहो, सतलोक कहो इसको, ये सतलोक ऋतधामा नो कारण ये फलाना, ऋतधामा माने सतलोक वाला, सतलोक का निवासी, वो कहते नहीं ये फलाने गांव का है, हाँ यो फलाना वो गांव का है। तो ये ऐसे है कि वो ऋतधामा वो सतलोक में रहता है। और सवर ज्योति देखिए अड़ंगा के रखे अनुवाद का, अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाला सवर ज्योति, स्वयं प्रकाशित, वो स्वयं प्रकाशित है, परमात्मा है, वो सतलोक में रहता है। कबीर उसका नाम है और वो ही अंगारी है, पापों का शत्रु है, बंधनों का शत्रु है, यानी बंदी छोड़ है वो कबीर अंगारी असी। ये कबीर, हम इसको कबीर बोलते हैं कबीर, हम लिखण भी कबीर लागे, पड्डी की मात्रा भी लिख दें। अब परमात्मा ने कहा वेद मेरा भेद है, मैं वेदन में नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। ये देखिएगा ऋग्वेद भाषा भाष्य द्वितीय भाग, ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम लेखराम नगर अब्राहमपुर मुखमेलपुर दिल्ली, दूरभाष इतना है। और नीचे लिखा है दान संस्थान नई दिल्ली का प्रकाशन, और इसका यहाँ अनुवाद करता है ये 9-10 मंडल हैं ये। महात्मा वेद भिक्षु भारतेंद्र नाथ दान संस्थान करोल बाग नई दिल्ली। इसके 10वें सूक्त के 10वें मंडल के और सूक्त नंबर 49 में दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त 49 49, इसका ये पहला ही मंत्र है। 49 सूक्त का ये पहला मंत्र है। इसमें लिखा है कि मैं स्तुति करने वाले को, यानी पूर्ण परमात्मा अपनी महिमा वेदों में लिख रहे हैं, और इसका अर्थ है कि अहम दा ग्रहणते पूर्वम स्वहम ब्रह्म करणम। अब पूर्ण परमात्मा कहता है कि ब्रह्म की उत्पत्ति मैंने ही की। अब यहां देखो इनका अनुवाद देखें, मैं स्तुति करने वाले को
सनातन निवास योग्य लोक, सनातन ऐश्वर्य निवास योग्य लोक, मोक्ष तथा ज्ञान प्रदान करता हूँ। मोक्ष भी प्रदान करता हूँ और निवास योग्य सनातन लोक, सनातन ऐश्वर्य, जहाँ जाने के बाद फिर कभी आपका सुख नाश नहीं होगा, वो प्रदान करता हूँ। अहम ब्रह्म, ये देखो स्पष्ट, ये भी पढ़ना पड़ेगा, हमने नहीं तो ये गड़बड़ कर रहे हैं। अहम ब्रह्म कर्णवम, मैं वेद को उत्पन्न करता हूँ। ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया इन्होंने, तरह गजब। मैं ब्रह्म को उत्पन्न करता हूँ। पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी सतपुरुष ने ब्रह्म की उत्पत्ति की थी। फिर मूल संस्कृत पढ़ो। अहम माने मैं, ब्रह्म माने ब्रह्म को, कर्णव उत्पन्न करता हूँ। मैं ब्रह्म को उत्पन्न करता हूँ। ठीक है, इन्होंने जहाँ थोड़ी बहुत गलती करी है अनुवाद में, उसको हम शुद्ध कर लेंगे अपने ज्ञान से। और यह वेद मेरी ही महिमा की वृद्धि करता है। ये वेद मेरी ही महिमा करता है, चारों वेद मेरी ही महिमा गा रहे हैं। यज्ञ दान सत्संग करने वाले को सन्मार्ग में आदेश करने वाला मैं ही हूँ। करे करावे साईं मन में लहर उठा, और दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। कहता सब ये दान पुण्य सत्संग पुण्यात्मा जो मेरे से जुड़ गए हैं उनको मैं ही लाता हूँ। यहाँ पर मैं ही सन्मार्ग का आदेश करने वाला मैं ही हूँ। मैं सकल युद्ध में न देने वाले कुसंगी यज्ञशील जनों को ही हराता हूँ। हराता है यानी हराता हूँ, यानी कहने का भाव यह है कि मैंने तो ब्रह्म की उत्पत्ति की है, और जो मेरी सतभक्ति करते हैं, मेरी स्तुति करते हैं, उनको सनातन लोक, सनातन माने शाश्वत स्थान प्राप्त कराता हूँ। और वहाँ से जब हम चले गए तो ऐश्वर्य आप पर रहेगा, वहाँ सारे ठाठ ठाठ, मृत्यु नहीं, कभी कोई बुढ़ापा नहीं, किसी चीज़ का भाव नहीं, निवास योग्य लोक, मोक्ष तथा ज्ञान प्रदान करता हूँ। और मैं अहम ब्रह्म कर्णों, मैं वेद को उत्पन्न करता हूँ, या वेद नहीं, यहाँ ब्रह्म को उत्पन्न करता हूँ। और मह्यम वर्धनम, और ये जो वेद हैं वो मेरी महिमा गा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म ने फिर वेदों का ज्ञान आगे दिया। अब कहने का तात्पर्य यह है कि हम जिन सदग्रंथों को सही मानते थे, सत्य मानते थे और मानते हैं, उनको हम समझ नहीं सके। जब पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने, उस दानक कबीर ने, जुलाहे कबीर ने, काशी में आए हुए भगवान परम अक्षर ब्रह्म ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को अपना सतलोक दिखा लिया, सचखंड दिखाया, वहाँ सब सतिथि से परिचित करवाया, तब वो वापस आया, उसके शरीर में वापस प्रवेश कर दिया आत्मा को। तब उसने जागृत होकर के कहा कि हे परमात्मा, हम तो इन श्री राम, श्री कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी को ही सुप्रीम पावर मानते थे। हे मालिक, फिर ये तो वेद और जितने भी पुराण हैं ये सब झूठी हैं। इनमें इनके बारे में बताया गया जो अमर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है। परमेश्वर ने कहा वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नाई। झूठे तो वो हैं जो इनको समझ नहीं सके। वेद पढ़ने पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18, और फिर भी वेद पढ़े और उसका समझ नहीं सकते, इस करके अज्ञान साधनाएं शुरू करवा रखी हैं। और जड़ को अंधा पत्ते खुआवे, भूल गया सृजनहारा। भगवान पर तुलसी के पत्ते चढ़ावे, फल फूल चढ़ावे मूर्ति के ऊपर, कहते सृजनहार को भूल गए तुम। तो इन वेदों में परमेश्वर की महिमा है। ये भी धीरे धीरे आपके समक्ष यथार्थ अनुवाद आओगा। पहले तो आप जी को ये जो ना दृढ़ करना चाहता है ये दास, कि आप जी ये समझें कि जो भी दास बोल रहा है वो सारी सच्ची है। उसके बाद ये दास इन वेदों का जितना आवश्यक है उनका अनुवाद करेगा। और पहले आपको इसलिए इन्हीं के अनुवादित वो दिखाए जा रहे हैं मंत्रों के अनुवाद, के ताकि कोई आपको भ्रमित ना कर दे कि न्यू कह कि रामपाल ने संस्कृत ना आती।
और ये महर्षि दयानंद के अनुयायी आचार्य ये संस्कृत के ज्ञाता थे। महर्षि भी दयानंद भी विद्वान पुरुष था, संस्कृत का ज्ञाता था। वो सही समझा है उन्होंने, वेदों का ठीक अनुवाद कर रखा है। तो पहले उन्हीं के द्वारा किए गए अनुवाद को दिखाकर फिर दास साथ साथ उनमें जो त्रुटि है वो आपके समक्ष पेश करेगा। फिर आपका समझ में आओगी, फिर आप दृढ़ हो जाओगे कि सचमुच कौन सा अनुवाद सही है कौन सा गलत है। फिर आप स्वयं निर्णय लेकर के दृढ़ हो जाओगे। और जब तक हम दृढ़ नहीं होंगे हम कोई मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। डगमग आदमी कभी सफल नहीं हो सकता। आप आगे जाकर के मान लीजिए दो रास्ते हो जाते हैं। कहीं आप अकेले जा रहे हो, या तो आपके साथ गाइड हो, कोई व्यक्ति जानकार हो, या फिर आपके पास मैप हो। उस मैप पर आप देख कर चल सकते हो कि ये रास्ता नहीं ये है, और मैप के बारे में आप दृढ़ हो कि सचमुच इसमें जो लिखा फाइनल है। तो ये हमारे सदग्रंथ हमारे मैप हैं। ये मैप आपको मानचित्र दिखाया जा रहा है कि आप जिस रास्ते जा रहे हो ये रास्ता आपका है, ये नहीं है। और आप दृढ़ हो जाओगे सचमुच ये, फिर आप डगमग नहीं हो सकते। अगर आपके पास मैप नहीं है तो आप चल पड़े, आगे दो रास्ते हो जाते हैं, वहीं पर आप असमंजस में पड़ जाओगे, आंख मीच करते चल पड़ो किसी साइड में, वो दूसरी बात है। तो ऐसे इन सदग्रंथों का आपके रूबरू कराना ये दास अनिवार्य समझता है। अब बताया कि वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि वो परमात्मा ने अपने मुख कमल ते जो वाणी बोली, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, यानी उस परम अक्षर ब्रह्म ने जो अपने मुख से वाणी बोली, उसमें बहुत विस्तार के साथ इन धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दे रखी है। उसको चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि गीता ज्ञानदाता ये काल श्री कृष्ण जी में बढ़कर बोल रहा है, इसमें प्रवेश करके बोल रहा है कि उस ज्ञान को तू, वो तत्व ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा प्रसन्न करने से, सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे जिसको गीता ज्ञान दाता भी नहीं जानता। वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, और सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से निकली है। यानी उसी परमेश्वर ने आके ये सच्चाई हमें बताई है कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, कौन परमात्मा है, तुम साधना क्या करते हो। तो वो परमात्मा की महिमा जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 49 में प्रथम मंत्र में आपने पढ़ा, ये परमात्मा कहता है पूर्ण ब्रह्म की उत्पत्ति मैंने की। और ब्रह्म ने फिर आगे मेरी महिमा, क्योंकि ब्रह्म के अंदर परमात्मा पांचों वेद फीड कर दिए थे, जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर कर दी जाती है पूरा का पूरा मैटर, फिल्म की फिल्म पूरी। ऐसे परमात्मा ने पांचों वेद इसके अंतःकरण में फैक्स कर दिए थे वहां से। और फिर जैसे समय आने पर अपने आप मालिक के नियमानुसार इसके अंदर से श्वासों के माध्यम से वो सारे बाहर आगे प्रकट हो गए। अब अगर आज से 50 वर्ष 20 वर्ष 40 वर्ष पहले ये दास ये बताता कि परमात्मा ने इसके कंप्यूटर में, इसके काल के अंतःकरण में वो चारों वेद भेज दिए, और फिर समय आने पर उसको आदेश अनुसार प्रक्रिया मालिक ने ऐसी की कि उसके श्वासों से आप निकले बाहर, तो ना दच्चा यह बात आज सारा यकीन होगा, विश्वास होगा आपको। क्योंकि आजकल आप जो टेक्निक देख रहे हो, कहाँ से कहाँ डाउनलोड कर लेते हैं, और एक छोटी सी चिप होती है इतनी, और उसके अंदर कितना मैटर भरा होता है, उसको कहीं भी फिट कर दी जा, जिसमें वह डाल दिए, फिर उसे कितना डाउनलोड कर लो, पूरे पृष्ठ के पृष्ठ इतना बड़ा पुलंदा भर लो। तो ऐसा हुआ था। तो इसने जब देखा कि डाउनलोड इसने किया बाहर अपने कंप्यूटर से अंतःकरण से,
तो पढ़ा के पर जो 5वां वेद था सूक्ष्म वेद, उसमें तो सारी ये जानकारी है। वे ऑफ वर्शिप भी इसने एक नहीं देखा, आप बताओ, उसको नष्ट कर दिया, छुपा दिया। और ये 4 थे जो जिसमें महिमा तो थी भगवान की, इनको खत्म नहीं कर सका ये। इसमें भी महिमा है लेकिन वे ऑफ वर्शिप नहीं है। और इस वेद को समझना यहाँ के प्राणियों के बस की बात नहीं, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे विष्णु, चाहे शिव जी, ये भी वेदों को नहीं समझ सके। ये तो वो परमात्मा स्वयं आता है, फिर स्वयं ही अपने द्वारा वर लिखी हुई उन ग्रंथों को स्वयं ठीक ठीक समझाता है। अब जैसे वेदों का जो निर्णायक ज्ञान परमात्मा ने अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी में बोला, अब उस वाणी से परिचित होने के बाद हमने वेदों को खोला और वेद बिल्कुल साफ हो गए, क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान है, इसको संस्कृत भाषा के जानने वाले नहीं खोल सकते, इसका अनुवाद नहीं कर सकते। जैसे किसी ने हिंदी सीख ली, फॉरेनर ने, अच्छा हिंदी में चाहे कुछ भी बन जा और शास्त्री बन गया, और उसने रामायण का ज्ञान नहीं, और उसको कोई कहे कि ले आप इन तुलसीदास कृत चौपाइयों का अनुवाद कर दो, अड़ंगा करेगा वो, बेसिक विद्वान बना हुआ है। तो ऐसे ही इन विद्वानों ने, संस्कृत भाषा के विद्वानों ने, विद्वान तो होता जो सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञ केवल कबीर परमेश्वर है, और सब भाषाओं का, सब अध्यात्म ज्ञान से सबका जानकार था वो, और उनको अविद्वान कहते थे, ये नकली विद्वान। अब संस्कृत भाषा के जानने से विद्वान नहीं होता, एक भाषा के जान लेने से विद्वान नहीं होता, उसका ठीक है, उसको वो भाषा आती है, उसका मास्टर है, बस। अब तत्व ज्ञान को नहीं समझ सके, जिस कारण से उन्होंने इनके अर्थों का अनर्थ कर दिया। अब वो परमात्मा स्वयं वहां से चलकर आते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही ठीक ठीक बताते हैं, और यथार्थ ज्ञान वही आकर देते हैं, वो ज्ञान समझाते हैं, मनुष्य की तरह चलकर आते हैं। अपनात्मा इस काल भगवान ने इन अज्ञानी ऋषि महर्षियों मंडलेश्वरों गुरुओं ब्राह्मणों द्वारा, ब्राह्मण कार से या कोई जाति से नहीं है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार जी, सत सैब जी, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम संदीप कौर है जी। कित्थों आए हो? ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਮਾਧਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਘਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜੋਤ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੋਤ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਭਗਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ। ਐਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਸ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਆਈ ਗਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗਠੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਠੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਗਮਾਂਡੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕਿਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਗਮਾਂਡਣ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਮਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਮਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਰਹੀ, ਅਣਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਲੱਗ ਹੀ ਕਰਨ। ਮੈਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਜੋਤ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਈ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜੋਤ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਈ ਘਰੇ ਜੋਤ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਗਠੀਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗਠੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗਠੀਆ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜੋਤ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਤ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋਤ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਬਸ ਜੋਤ ਲਾਉਂਦੀ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਵੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੀ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲਊਂਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲਊਗੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਲੱਗੂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਗਏ, ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਤੇ ਕਿਵੇਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਸ਼ਕ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਭਗਤਮਤੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ 2 ਸਾਲ ਰੁਕ ਜਾ ਸੰਦੀਪ, ਹਜੇ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਤੂੰ ਰੁਕ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੜ ਆਈ, ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਰੁਕ ਜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸੰਦੀਪ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ 2014 'ਚ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਕਹਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ 2 ਸਾਲ ਰੁਕ ਜਾ। ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਮੇਰਾ 12/6/2016 'ਚ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਗਠੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਗਠੀਆ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਉਸਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਭਗਤੀ ਉਵੇਂ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਈ। ਬਸ ਘਰ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਾਭ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੀ ਵੀ ਰਹੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਆਂਗੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬਰਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਪਾਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਭਗਤ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ 100 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ? ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ 24 ਪੰਨੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਫਾਹੀ ਸੁਰਤ ਮੁਲੂਕੀ ਵੇਸ, ਇਹ ਠਗਵਾੜਾ ਠੱਗੀ ਦੇਸ, ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ, ਧਾਨ ਕਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ 2 ਅੱਖਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਤਨਾਮ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੰਤਰ ਜਪੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸੁੱਖ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ, ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੋ, 3 ਟਾਈਮ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।